Assalamu alaikum everyone. This is Dr. मंजूर अहमद शेख. वेलकम बैक टू लर्न एंड ग्रो. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है रीइंफोर्समेंट एंड इट्स टाइप्स. आज के टॉपिक में हम सबसे पहले रीइंफोर्समेंट का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट टू मेन टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स, positive reinforcement and negative reinforcement, and we will discuss all these concepts with the help of examples. I am confident that if you watch the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है reinforcement and its types. Reinforcement is the heart of operant conditioning theory of learning given by B.F. Skinner. It is used to shape or modify the behavior of humans as well as animals. तो अगर हम reinforcement की बात करें, reinforcement is the heart of operant conditioning theory given by B.F. Skinner. It is used to shape or modify the behavior of humans as well as animals. इसका मतलब ये है कि reinforcement जो है ये B.F. Skinner की operant conditioning theory of learning का main concept है. Human या animal behavior को shape या modify करने के लिए reinforcement का use किया जाता है. Next point is reinforcement and reward are used interchangeably. Reinforcement can be given in various forms to encourage desired or positive behavior. Reinforcement के लिए जो synonyms term है वो है reward. That is why reinforcement and reward are most of the times used interchangeably. Reinforcement का use हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक individual में desired या positive behavior develop कर सके. Reinforcement can be given in many different ways. या दूसरे words में हम कह सकते हैं कि there are various forms of reinforcement. For example, praise, appreciation, good remarks, good compliments or some of the forms of reinforcement. Sometimes we make use of bonuses, trophies, medals, treats, toys and gifts in order to encourage desired or positive behavior. Now let us have a look at the definition of reinforcement. Definition of reinforcement. Reinforcement can be defined as something that is used to increase the frequency of a desired or positive behavior. इसका मतलब ये है कि डिजायर्ड या पॉजिटिव बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है. तो चलिए इसको हम क्विकली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन के रेस्पॉन्स में टीचर उसको अप्रिशिएट करता है बाय सेइंग दीज वर्ड्स, यू हैव आस्क्ड अ ग्रेट क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड अ $1 million क्वेश्चन. अप्रिसिएशन या रिवार्ड के बाद स्टूडेंट जो है वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है, वो सेटिस्फाइड फील करता है, एनकरेज्ड फील करता है. तो विद द रिजल्ट वो इस क्वेश्चनिंग बिहेवियर को फ्यूचर में भी रिपीट करता है. तो इस तरह हमने इस एग्जांपल से समझा रीइंफोर्समेंट कैन बी यूज्ड to strengthen the desired or positive behavior of a person. Now let us have a look at types of reinforcement. Types of reinforcement. There are two main types of reinforcements. Number one, positive reinforcement and number second, negative reinforcement. तो अगर हमें positive reinforcement को define करना हो तो हम कह सकते हैं in positive reinforcement
We add something pleasant to encourage desired or positive behavior. In positive reinforcement, we add something present to encourage positive or desired behavior. एक इंडिविजुअल में डिजायर्ड या पॉजिटिव बिहेवियर इनकलकेट करने के लिए हम पॉजिटिव reinforcement का यूज करते हैं, यानी we add something pleasant in order to encourage desired or positive behavior. Now let us understand the concept of positive reinforcement with the help of an example. For example, एक एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट करता है। तो जब वो प्रोजेक्ट सबमिट करता है तो मैनेजमेंट उसकी फिनोमिनल या टेरिफिक परफॉर्मेंस से बहुत ही मुतासिर होता है। तो उसके बाद इस एम्प्लॉय को रिवार्ड के तौर पे कुछ बोनसेस दिए जाते हैं। बोनसेस या रिवार्ड मिलने के बाद ये एम्प्लॉय बहुत खुश होता है, सेटिस्फाइड फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, वैलिड फील करता है। दिस इंस्पायर्स द एम्प्लॉय टू मीट डेडलाइंस कंसिस्टेंटली। जब हमें किसी पॉजिटिव बिहेवियर पे रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट मिलता है तो हमारे ब्रेन से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन, एंड डोपामिन इज एसोसिएटेड विद प्लेजर एंड मोटिवेशन। यानी डोपामिन जब रिलीज होता है तो हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, हम में कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम वैलिड फील करते हैं, हम मोटिवेटेड फील करते हैं और हम एनकरेज्ड फील करते हैं। विद द रिजल्ट हम उस डिजायर्ड या पॉजिटिव बिहेवियर को फ्यूचर में भी रिपीट करते हैं जिस पे हमें रिवॉर्ड मिला था या जिस पे हमें रीइंफोर्समेंट मिला था। Now let us have a quick glance at the negative reinforcement. As far as the negative reinforcement is concerned, in negative reinforcement, we remove something unpleasant to encourage desired or positive behavior. यानी इसका मतलब ये है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम डिजायर्ड या पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस या सिचुएशन को रिमूव करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन द लाइट ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन ऑफन गेट्स स्टक इन ए ट्रैफिक जैम। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स ए फ्रस्ट्रेटिंग एंड स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस फॉर देम। तो इस अनप्लेजेंट या एवर्सिव एक्सपीरियंस को अवॉइड करने के लिए दे लीव फॉर वर्क earlier. By doing so, they are able to arrive for their work on time. तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल से समझा ट्रैफिक जैम इस पर्सन के लिए एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस थी, एक एवर्सिव एक्सपीरियंस थी। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को ओवरकम या अवॉइड करने के लिए दिस पर्सन लीव्स फॉर द वर्क अर्लियर। इस तरह इस पर्सन ने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को प्लेजेंट एक्सपीरियंस से रिमूव किया और ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस अब इस पर्सन के लिए डिजायर्ड या पॉजिटिव बिहेवियर बन गया। तो अगर आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। So this is all we have for today. If you found today's video informative, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to my channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. So take care and see you in the next video.